Now, as it has been as the lectures have been started in the morning, and there are many people who may miss out the lectures. So every lectures are going to be recorded and that is going to be uploaded on the YouTube. तो उसका link जो है वो मैं Google Classroom में share कर दूंगी. I hope everyone has joined the Google Classroom with me. जो मैंने link Yes, दिया miss. था. Yes. Yes, And ma'am. I am Yes, sure miss. आप सब लोगों ने welcome note भी पढ़ा होगा जो मैंने आप लोग के लिए डाला था. Yes, miss. Yes, miss. I want your health first to be much better. Then rest of the things comes secondary for me. But primary is your health and your well wishings. That's it. So I hope everyone has joined that. So उस पे link share कर दिया जाएगा. Every day का जो lecture होता है हमारा, every week का whatever the lectures we take, every lectures will be recorded, will be uploaded on the YouTube and उसका link share किया दिया, मतलब वो link share करूँगी so that when you click on that link you will get that lecture. All right, that particular lecture you will get it. And don't worry, उस lecture का proper heading भी दिया जाएगा that what I have done in that lecture. ठीक है? Yeah, चलो. Please be active in the classroom because from today onwards we'll be doing a lot of things in that. Now I have already given to you the list what I'm going to do in the classroom. I'm going to give you the diagram practice. I'll be going to share some worksheets with you. ओके कुछ टेस्ट कंडक्ट करूंगी गूगल फॉर्म्स पे डायरेक्टली जिसका विंडो कुछ ही समय के लिए ओपन रहेगा. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू पार्टिसिपेट विथ मी एंड वी कैन पुश लिटिल बिट फॉरवर्ड एंड थोड़ा सा कुछ यूनिक करेंगे हम लोग. ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग. आई होप एवरीवन कैन सी द क्वेश्चन नाउ. ओके. The very first question was blood vessel that brings blood from the body parts. It was a very easy question. इसको बिल्कुल भी complicate नहीं बनाना है. I am expecting this simple answer. Veins. I'm expecting this simple answer. किससे लिखा ये आंसर? I'm sure सब लोगों ने superior या and inferior vena cava लिखा होगा. Very good, Dave. Very good, Khushi. Actually, the answer is very simple. It is veins. Okay. It is veins because पूरे बॉडी पार्ट्स में से सिर्फ वेन्स ही तो है जो ब्लड कलेक्ट करके हार्ट के तरफ लेकर आता है. all the veins are joining to superior and inferior vena cava. So superior and inferior vena cava are entering into the heart. पर पूरे बॉडी पार्ट्स में से तो सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा नहीं लेकर आते. ये तो लॉजिक है. पूरे बॉडी पार्ट्स में से कौन लेकर आता है ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज वेन्स. ओके, do not make the question complicated. Next, the process by which WBC engulf bacteria. Phagocytosis. Phagocytosis. Very good. You can please tell me your answer. Phagocytosis. Okay. The site of production of RBCs in the human embryo. Spleen Liver and and liver. spleen. Spleen and liver. दोनों आना चाहिए आंसर में. स्प्लीन एंड लिवर दोनों आना चाहिए. आई होप आंसर पेपर आपके सामने है. Yes, Ma'am. ma'am. Yes. हाँ बच्चा. Ma'am, in answer sheet I had written both, then half mark is cut. No, 1 mark is full cut for this question. Why? I don't know. नहीं, स्प्लीन एंड लिवर दोनों आंसर है. स्प्लीन आपने क्या लिखा है देव? Liver and spleen. And it's wrong. I mean, surprised. Ma'am, they have given wrong. Okay, ठीक है. You can add 1 mark. You can add 1 mark from my side. Add it. Add it. Okay. Analogy type of question. Veins, superficial. Artery. Deeply seated. Deeply seated. आप deeply seated भी लिख सकते हो. Deeper भी लिख सकते हो. Okay. Both are like acceptable. Auricles, receiving chamber. Ventricles. Distributing chamber. Distributing. Very good. Nice. Give the exact location of chordae tendineae. किससे कुछ लिखा है तो मैं आंसर दूं. मुझसे डिस्कस Yes, करो. ma'am.
हाँ, क्या लिखा है? Chordae tendineae are tendinous cords located in each ventricle arising from muscular projection of wall of ventricles called Very papillary good, muscle. very good, fantastic answer. Very nice, very nice. Once again, Dave. Yes, ma'am. Chordae tendineae are tendinous cords located in each ventricle arising from muscular projection of wall of ventricles called papillary muscle. Superb, superb. These are tendinous cords arising from the muscular projection of each ventricles called papillary muscles. Very nice, very nice. सिर्फ लोकेशन पूछा है, फंक्शन नहीं पूछा है. ओके, सो होल्डिंग द फ्लैप्स ये लिखने की जरूरत नहीं है. कोरोनरी आर्टरी, हु हैज रिटन? पार्थ, बख्तियार, श्रेयसी, प्रेम, खुशी, देवांग. हाँ ठीक है, वेदांत बोलो. Coronary artery arises from the base of aorta. You need to write down two coronary arteries. Two coronary arteries arising from the base of aorta. दो लिखना पड़ेगा because how many branching has been formed that you should write it down. दो ही ब्रांच बनता है ना बच्चा, एक लेफ्ट साइड के हार्ट में जाता है और एक दूसरा जो ब्रांच है वो राइट साइड के हार्ट में जाता है वॉल्स पे. तो दो ही ब्रांचिंग बन रही, तो आपको नंबर 2 मतलब लिखना पड़ेगा. Two coronary arteries arising from the base of the aorta. Okay. Mitral valve. Anyone? Ma'am, Bhakti. हाँ Devang. Very Ma'am. good Devang. they are two flap or cusp-like structures that are present at the aperture of the right auricle and the right. यो right auricle क्यों लिखा? Wrong. Sorry, left Left auricle and left ventricle. एक पक्का बोल, पेपर में क्या लिखा है? मैम लेफ्ट ही लिखा है पेपर. तो तूने राइट क्यों बोला? मैम वो रीड करते करते गलत बोल दिया. बाप रे, रीड करते करते कोई लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर देता है. ओ माय गॉड, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम देवांगा. वो कभी भी कुछ भी डायरेक्शन चेंज कर लेगा. ओके, जानवी, मिट्रल वाल्व का आपने क्या लिखा है जानवी? The side road mitral valve is located at the aperture between the left auricle and left ventricle. But if you will write down only the location बच्चा, then marks cut होंगे. आपको valves का structure भी लिखना है, that these are two flaps or cusp-like structure. ठीक है? Okay. Vidhi, state the main function of the following. Aortic semilunar valve. Vidhi. Yes, ma'am. Just a second. Sure. Yes, बच्चा. Yes, ma'am. 1 minute. Okay. Simran, your answer for aortic semilunar valve. आपने क्या लिखा है? Yes, ma'am. Ma'am, I wrote. Ma'am, I wrote it prevents the backflow of oxygenated blood to the left ventricle. Oh, no. It prevents a backflow of the oxygenated blood from aorta into the left ventricle. From aorta into the left ventricle. Aorta से वापस जो blood आता है उसको prevent करता है. Okay, so please mention that. Okay, anyone with any other answer? Vidhi, आपका answer? प्रियंका? Ma'am, same. सेम ही लिखा है. प्रियंका? lymph का function प्रियंका क्या लिखा है? आस्था? श्रेया जादव, प्रिशा, श्रेयशी. lymph का आंसर. Can I say? Yes, Prisha. This I written, it supplies oxygen and nutrients to the body parts where blood cannot reach. Very good. It supplies oxygen and nutrients to those deep tissues or body parts where the blood cannot reach. Superb. Nice. Do not make it complicated. Prathamesh, आपने कुछ अलग लिखा है? कोई दूसरा फंक्शन या ऐसा कुछ? No? The same point? That's why protect. Protection का बताओ, एक बार बता दो क्या लिखा है? Function of lymph is to protect the body from foreign bodies which are harmful. Okay, ये भी आप फंक्शन लिख सकते हो. Guys, ये वाला भी आप लिख Production of सकते हो. WBC. ये वाला भी आप लिख सकते हो. Protection by the
Lymph is a fluid which protects our blood from the harmful disease causing germs as it contains WBCs, right? As it contains WBCs, so it protects. Very good, very nice. आप ये भी लिख सकते हो. Supply nutrition and oxygen to Yes, parts of. yes, absolutely. वो तो तो पहला उसमें को उधर मार्क्स मिला ही नहीं, 0 मिल गया. प्रीशा ने दी, लिखा हुआ है, प्रीशा ने लिखा हुआ है वो. हाँ, पर मैंने भी वही लिखा तो मेरे को नहीं मिला मार्क्स. आपने क्या लिखा प्रॉपर्ली बोलो. Supply of nutrition and oxygen to the body parts where blood cannot reach. वही लिखा है. प्रीशा आपको मार्क्स मिला? Yes, ma'am. तो फिर आपको क्यों नहीं दिया वेदांत? क्या मालूम, मैंने बाद में उसका क्यों ऐसे न्यूट्रिटिव फंक्शन है ना, वो भी लिखा बाजू में. You give it. मैं बता रही हूँ, आप दे दो आप 1 मार्क दे दो, वहां पे दे दो. Okay. Left ventricle has a thick muscular wall than the other walls of the heart. Why? Anyone? Anyone of for you? Prathamesh, Parth, Heath, Aditya. मैं कौन मैं कौन नाम? प्रेम. हाँ प्रेम बोलो. The left ventricle has thick muscular wall other than other walls of the heart because left ventricles contain oxygenated blood which is to be transported to all the parts of the body, which consist upper region and the lower region of the body and gives against the gravity. Gives out. अयो इतना सारा सब नहीं लिखने का है. बाप रे ऐसा लग रहा था मैं एनाटॉमी पढ़ रही हूँ. इतना सारा नहीं लिखना है बेटा, इतना सारा नहीं लिखना है. इतना सारा आप लिखने में टाइम वेस्ट कर दोगे ना तो बाकी के क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे सॉल्व करना. प्रेम, डोंट राइट डाउन सो मच, ओके? जस्ट राइट डाउन द अप्रोप्रिएट पॉइंट. 1 मिनट वेदांत, 1 मिनट. श्रेयसी, आपने कुछ अलग लिखा है? Yes, ma'am. मैंने लिखा है left ventricles has thick muscular walls than the other walls of the heart as it needs to transport blood to long distances. बस इतना ही लिखा है, long distances. You see the marks? 1. Marks is for 2 marks, बच्चा. Ma'am, may I? Yes, Shreya. The left ventricle has the thickest walls because it has to transport blood to far away points like toes, legs, etc. It even has to pump blood against the gravity so that it can reach the head. Yes. Shreya, see, you need to make us understand what are those farther points. मतलब वो farther regions कौन से अपने body parts के वो आपको बताना है. That is up to the toes and to the brain against the gravity. इसलिए उसको ज्यादा पंप और प्रेशर करना पड़ता है जिसके वजह से उसके वॉल्स काफी थिक होते हैं. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. Ma'am. हाँ. Ma'am, for this I'll get 2 marks. Yes. Ma'am, they have given 1.5. फिर से बोलो आंसर. आंसर फिर से बोलो. The left ventricle has the thickest walls because it has to transport blood to far away points like toes, legs, etc. It even has to pump blood against the gravity so that it can reach the head, that is brain. It can reach the head, और bracket में brain. Have you mentioned oxygenated blood? No, ma'am. Have you mentioned oxygenated blood? No, ma'am. ये कीवर्ड है. कौन सा ब्लड वो पंप कर रहा है वो भी तो बताना है ना. Okay, ma'am. Differentiate between pulmonary and systemic circulation. फटाफट. Who has written? विधि, अभी आपको आंसर मिल गया सब. आप बोल सकते हो. निष्का. Yes, ma'am. Systemic circulation का आंसर क्या लिखा है बच्चा? मैंने Any one of you, Vidhi or Nishka, anyone? It starts in the pulmonary artery arising from left ventricle and circulation is between heart and lungs. It starts, no, ये तो point ही गलत है. Pulmonary artery left ventricle से start नहीं होता. Pulmonary artery right ventricle से start होता है. हाँ, right ventricle. आपने left बोला. Left बोला, right ventricle. आज सुबह सुबह क्या हो रहा है यार? Left का right, right का left हो रहा है. हाँ ठीक है, चलो बोलो.
And systematic circulation, it starts from the aorta arising from left ventricle, and circulation is between the heart and the entire body. Very good विधि, मस्त point लिखा है, मस्त, super, 2 point को merge कर दिया इसने. Pulmonary circulation, it starts from the pulmonary artery arising from the right ventricle and supply deoxygenated blood to the lungs. Systemic circulation, it starts from the aorta arising from the left ventricle and supply oxygenated blood to the entire body. Very good. Diastole and systole, fatafat. Diastole and systole. Ma'am, हाँ देवांग. diastole is the expansion phase when blood enters the heart chambers, and systole is the contraction phase when blood leaves the heart chambers. Very good. Diastole is the expanded phase of the cardiac cycle where the heart is filled up with the blood, or heart chambers are filled up with the blood. Systole is the contraction phase of the cardiac cycle where heart pumps the blood. Very nice. Artery and vein. Artery and vein. Nishka, answer ready hai? Yes, ma'am. Bolo. Artery, they carry oxygenated blood except pulmonary artery, and vein, they carry deoxygenated blood except for pulmonary vein. लेकिन कहाँ से कहाँ ये कुछ नहीं लिखा है. अच्छा ठीक है, आगे बोलो. Then they have thick muscular tissues, and veins have thinner muscular tissues, and the lumen is narrower and the lumen is wider. आपने 3 पॉइंट डाल दिए. अरे आपको लेकिन एक ही पॉइंट, एक ही मार्क का पूछा है ना बच्चा, तो एक ही पॉइंट लिखना है. दैट वन पॉइंट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ. चाहे आप स्ट्रक्चरल का लिखो या ब्लड का लिखो. एंड मैं तो सजेस्ट यही करूंगी कि आप स्ट्रक्चर डिफरेंस पहले लिखो. ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगा आर्टरी और वेन के लिए. स्ट्रक्चरल डिफरेंस लिखो. आर्टरी हैज थिक मस्कुलर वॉल्स, थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स. Artery has thick elastic muscular walls with a narrow lumen and does not have any valves in the wall, whereas vein has thin non-elastic muscular walls with a wider lumen and have valves to prevent the backflow. Okay, चलो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. सबसे पहले तो 1 to 8 लेबलिंग कर दे फटाफट. 1 क्या है? Superior vena cava. Very good. 2 Aorta. 3 pulmonary artery. 4 Pulmonary vein. pulmonary vein. 5 Hepatic vein. hepatic artery. 6 Hepatic portal vein. hepatic portal vein. Yes, it is vein, portal vein. 7 Hepatic vein. hepatic vein. And 8 inferior vena cava. Okay, name the blood vessel 1 and 2. हमने already label कर दिया है. Superior vena cava and aorta. State the function of blood vessel label 5 and 6. 5 का क्या है function? Hepatic artery. It supplies oxygenated blood from the heart to the liver. It supplies oxygenated blood to the liver. Okay. 6 hepatic portal vein. क्या लिखा है function? Carry deoxygenated blood from stomach and small intestine into the liver. नहीं, it carries deoxygenated blood. It carries deoxygenated blood with excess amount of glucose and amino acids from the stomach and intestine into the liver to regulate the concentration of blood in the body. To regulate the concentration of blood in the body. Okay, I repeat. It carries deoxygenated blood with excess amount of glucose and amino acids from small intestine and stomach into the liver to regulate the concentration of blood into the body. In the body. Okay. What is the importance of the blood vessel label 3? Pulmonary artery का importance बताओ. बच्चा लोग pulmonary artery का importance बताओ. Transport deoxygenated blood from lungs to for oxygenation Very from good. right ventricle. Yes, transport deoxygenated blood from right ventricle into the lungs for oxygenation. Fantastic. Which blood vessel will contain high amount of glucose and amino acids? Hepatic portal. आपको लिखना है blood vessel number 6. You have to write down like this. Blood vessel number 6, hepatic portal
hepatic portal vein. Okay, draw a diagram of the different blood cells as seen in a smear. Already draw किया हुआ है. You draw RBCs, okay, you draw WBCs, platelets and plasma. WBC आप normally कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल बना दो, प्लाज्मा आप डॉटेड दिखा दो, प्लेटलेट्स थोड़े से फ्लैट दिखा दो छोटे, एंड RBCs बाइकॉन्केव दिखा दो. दैट्स इट. एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑल सेल्स इन अ सर्कल बिकॉज आपको ब्लड स्मीयर पूछा है. स्मीयर यानी कि जो माइक्रोस्कोप में दिखता है उसमें का आपको पूछा है. लाइक व्हेन यू सी द ब्लड स्मीयर अंडर द माइक्रोस्कोप, व्हाट आर यू गोइंग टू सी? तो आपको सर्कल के अंदर वो ड्रॉ करना है. ठीक है, ओके एवरीवन. सर्कल ड्रॉ नहीं किया तो बॉक्स कटेंगे? नहीं, ऐसे कटेंगे तो नहीं, बट देन व्हाट इज बीन आस्क्ड वो फिर वो प्रॉपर प्रिसाइज वे में नहीं रहेगा, इसलिए मैंने सर्कल ड्रॉ नहीं किया तो मेरे को सिर्फ हाफ मार्क मिला. ओह Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर्कल वो ब्लड स्मीयर है ना, दैट इज व्हाट मेरा फर्स्ट. मैंने क्या बोला? यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, क्योंकि वो ब्लड स्मीयर के बारे में पूछा है. वैसे तो काटने नहीं चाहिए बिकॉज ब्लड कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली होने चाहिए. सो हैव यू ड्रॉन ऑल द ब्लड कंपोनेंट्स? पहले ये बताओ. यस, बाइकॉन्केव प्लाज्मा, आरबीसी लिखा है. क्या प्लाज्मा? हाँ, बाइकॉन्केव आर. बिना सर्कल के आप प्लाज्मा कैसे बना सकते हो? जो प्लाज्मा नहीं बना है. हाँ, तो फिर there are 4 things that is very important that we will be seeing: plasma, RBC, WBC and platelets. वो चारों है क्या? नहीं, सिर्फ 3 ही है. हाँ बस, तो इसीलिए आप मार्क कटा. All right guys, let's begin with our chapter. चलो back to हो the गया है ना? everyone can see the screen. एक्सक्रीटरी का डिस्कस नहीं करोगे? एक्सक्रीटरी का पेपर भी हो गया. हाँ, हो गया. 28 को हो गया. हाँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर करूंगी. ओके. हाँ, नेक्स्ट लेक्चर वो करती हूँ. ठीक है, ओके. ये वाला स्ट्रक्चर बताया था मैंने देव. Yes, ma'am. You sure? है ना, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हम लोगों ने. ये हाईली कॉइलिंग ऑफ द डीएनए टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स, राइट? यस, ये वाला भी बताया था मैंने. दैट इज द 2 sister chromatids attached to the centromere. नहीं. अगर ये वाला नहीं बताया, नहीं. ओके, रिलैक्स. चलो, let's do it. Okay. Each chromosome in its condensed form okay, they are visible only during the start of cell division. मैंने आपको बताया था ना कि जो सेल डिवाइड करना चाहता है सिर्फ वही सेल में आपको कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे. हाँ या ना? है ना? बहुत अच्छे से बताया था मैंने. Now, how these chromosomes they look? There are 2 sister chromatids which are joined at the same point along the length. So there are 2 chromatids which are joined, and these 2 chromatids are joined to a common point of attachment called centromere. Can everyone see that common point? Centromere. So what is centromere? Centromere is a small constricted region on the chromosome. Yes, it is a small constricted region which is present in between the chromosome and to which the 2 sister chromatids are attached. आप देख ही सकते हो वो. तो what is the function of centromere? Very important. क्या समझाया था मैंने कि मैं अपने पीपीटी या नोट्स में जो भी हाईलाइट करूं वो आपको भी करना है, राइट? So what is the function of centromere? The 2 sister chromatids are attached to form the chromosome, and it also serves to attach the spindle fibers during the cell division. Yes. अब ये वाला पॉइंट शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, मतलब शायद आपको ये पॉइंट नहीं भी पता रहेगा बिकॉज अभी तक हम सेल डिविजन तक पहुंचे नहीं है. बट आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर द फर्दर पार्ट, क्योंकि हम लोग आगे अभी सेल डिविजन ही करने वाले हैं. तो एक बात याद रखना, जो भी स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं ना, यू ऑल नो, हमने 9th में पढ़ा था सेल के चैप्टर में, दैट देयर आर स्पेशल ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स जो ये स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये काफी इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पे अटैच रहते हैं एंड वो क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं. So when the chromosomes are pulled from the centromere, guys,
from the centromere the sister chromatids get separated, यानी कि centromere से वो sister chromatids जो है वो separate हो जाते हैं and they move towards the opposite pole. तो ये जो last point है ना, ये मैंने वही समझा है. Please open textbook का page number 10. Textbook page number 10, structure of chromosome. Did you get that paragraph? Everyone? Yes, miss. मिला? Yes, ma'am. वो पैराग्राफ का लास्ट पॉइंट देखो जो मैंने यहाँ पे भी डाला है. As the spindle fiber contracts, मिला? As the spindle fiber contracts, the sister chromatids are separated at the centromere and each is pulled away from the each other towards the opposite pole. मतलब दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट होके ऑपोजिट पोल्स में जा रहे हैं. मिला वो पॉइंट? उस पॉइंट के वहां पे लिख दो स्टडी इन सेल डिवीजन. हम इसको स्टडी करने वाले सेल डिवीजन के वक्त. ओके, अभी आपको ये पॉइंट बिल्कुल नहीं समझ में आएगा बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे हो रहा है. ठीक है, चलो. नाउ कैन यू सी व्हेन द क्रोमोसोम्स आर सिंगल, ओके, मतलब जब उसके पास सिर्फ एक ही क्रोमैटिड होता है, इट लुक्स समवॉट लाइक दिस. कैन यू सी इट हैज ओनली वन क्रोमैटिड. बट जब इसी क्रोमैटिड का डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है, आर यू लिसनिंग? जब इसी क्रोमैटिड का डुप्लीकेट कॉपी बनता है, the duplicate copy is also attached to the same centromere and now you can see there are two chromatids which are attached to the same centromere क्योंकि एक दूसरे का डुप्लीकेट कॉपी है. एक जो क्रोमैटिड है वो दूसरे क्रोमैटिड का दूसरा डुप्लीकेट कॉपी है. So now together they are called as sister chromatid and these sister chromatids are attached to the common centromere. तो चलो हम देखते हैं कि ये दूसरा क्रोमैटिड आया कहां से और क्यों आया है. All right, so our next topic is what are genes? I have already discussed. Our next topic is need for the cell division. Need for the cell division. Chalo. Why do you think that the cell always has to carry out division? Okay. पहला point है growth. New cells क्यों चाहिए आपको? First point is growth. Every organism begins life as a single cell, guys. Every organism, even humans also, they begin their life from a single cell. Just for an explanation मैं समझाना चाहूंगी. You all know humans are born or humans are actually formed or they are developed from a single zygote. बराबर है, आपको याद है ये. तो basically sperm, okay, from a father and ovum from mother. All right, जब ये fused होते हैं, what is formed? Zygote. Now, if you see this zygote under the microscope, it is a single cell, बच्चा लोग. It is a single cell. अब यही zygote repeatedly division करता है. Please listen to this. जब यही zygote repeatedly division करता है, मतलब continuous, spontaneous, repeatedly division करता है, it produce tissues. Sorry, mass of cells. It produce mass of cells. These mass of cells will develop into particular tissues. These tissues will develop into particular organs. Many organs, they will come together and they will work together forming organ systems. And organ system se banta hai body, right? Body, that is baby. That is baby. And baby after the birth, it grows into adult. Am I right? ये पूरा प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी का. Yes or no? Did you understand this point? Okay. Zygote से लेके बेबी तक, zygote से लेके बेबी तक क्या हो रहा है? Zygote से लेके बेबी, if you see zygote is single cell and now the baby is formed, तो ये किसके वजह से हो रहा है? This is all because of cell division. Continuous cell division से mass of cells produced हो रहे हैं. Many cells are produced and these cells are forming tissues and tissues are forming organs and organ system. And that's why in our body, there are different organ systems which are present. Like we have circulatory system, we have excretory system, nervous system, reproductive system, digestive system, respiratory system, etc.
राइट? तो ये सारे सिस्टम्स कैसे तैयार हुए? फ्रॉम अ सिंगल सेल, और ये सारे सिस्टम्स बॉडी में प्रेजेंट है. दैट इज बेबी. आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, द बेबी इज स्टिल ग्रोइंग गाइस. द बेबी इज ग्रोइंग एंड it is now getting into a mature stage that is called adult. तो यानी कि सिंगल सेल से लेकर पूरा एडल्ट तक का जो पूरा जर्नी है, जो पूरा प्रोसेस है, that is all because of cell division. एडल्ट में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बताया था ना मैंने, एडल्ट में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो सिंगल सेल से ट्रिलियन सेल्स कैसे बना? ऑफ कोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm rubbing this. Okay. Now, second is replacement. I'll take a classic example of RBCs because हमने just अभी circulatory system में पढ़ा 120 days में, every 120 days में complete RBCs, that is 4.5 to 5.5 millions of RBCs are being replaced every second. They are replaced every second. And how they are replaced? Because of the bone marrow, right? Old RBCs are replaced with a new one by bone marrow. बोन मैरो के सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली लगातार डिवाइड करते रहते हैं ताकि वो एवरी 2 मिलियन आरबीसीज पर सेकेंड को रिप्लेस कर सके. सो मतलब एवरी सेकेंड में 2 मिलियन आरबीसीज आर बीन रिप्लेस्ड बाय द बोन मैरो बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिविजन. तो बोन मैरो के सेल्स सोचो कितने फास्ट डिवाइड करते होंगे कि वो 2 मिलियन आरबीसीज एवरी सेकेंड में रिप्लेस कर देते हैं, राइट? सो रिप्लेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग. बच्चा लोग, रिप्लेसमेंट इज नॉट कॉल्ड रिपेयर एंड रिपेयर इज नॉट कॉल्ड रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि ओल्ड वाले को नए से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट. तो रिपेयर क्या हो जाता है? एक्सीडेंटल इंजरीज या कट या फिर फ्रैक्चर की वजह से जो हमारे सेल्स और टिश्यूज डैमेज होते हैं, वो डैमेज सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने का काम होता है स्टेम सेल्स का. सो इवन स्टेम सेल्स दे डिवाइड वेरी रैपिडली एंड दे रिपेयर ऑल दीज डैमेज सेल्स विद द न्यू सेल्स, राइट? तो रिपेयरिंग कब होता है? ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन आवर बॉडी इज बीन डैमेज्ड बाय ड्यू टू इंजरीज और ड्यू टू कट इन और वुंड्स और ड्यू टू फ्रैक्चर. तो वो जब नीडेड होगा तब होगा, बट अदरवाइज रिप्लेसमेंट तो हर वक्त होते ही रहता है. आप समझ रहे हो? रिप्लेसमेंट तो हर वक्त होते ही रहता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? रिपेयर और रिप्लेसमेंट का मतलब समझा ना, है ना? रिपेयर और रिप्लेसमेंट. नाउ सी, आई एम गोइंग टू से वन सेंटेंस. रिपेयर इज बीन कैरिड आउट, repair of our bodies or the damaged cells are carried out by replacing the damaged cells with the new one. By replacing the damaged cells with a new one. I am using the word replacement in the repair section, but I cannot use the word repair in the replacement section. Are you understanding? Yes, ma'am. Okay. Reproduction. हम जब अमीबा को देखते हैं, अमीबा is a unicellular organism. It reproduce by division, wherein it produce similar cells. आप देखते ही होंगे, आपको तो पता ही होगा, अमीबा जब डिवाइड करता है तो it produce similar cells, right? सारे cells एक जैसे, like सारे cells काफी similar होते हैं. So what is that process called? Mitosis. Algae, fungi, some plants, they carry out mitosis. So they produce similar kind of progenies. But higher organisms, that is humans, they undergo reproduction by producing special cells, and these special cells are called as gametes. What are they called? Gametes. So how are these gametes produced? Gametes are produced by the process called meiosis. Are you listening? By the process called meiosis. Okay, meiosis. तो यानी कि meiosis से humans जो है meiosis से gametes produce करते हैं. These gametes are produced in the reproductive organs, that is testes in males and ovaries in females. और इसलिए males जो है वो sperms produce करते हैं and ovum जो है वो females produce करते हैं, right? Now when you see sperm and egg both, they are having half the number of chromosomes. Yes, of course, I'm going to highlight this. They have half the number of chromosomes as that of parent cell. Half the number of chromosomes यानी कि sperm और egg में 23 और 23 होता है. So when the sperm and egg are fused together, diploid number is restored back. यानी कि one chromosome from each pair is present in the sperm. There are 23 pairs which are present. 23 pairs में से सिर्फ 23 chromosomes जाते हैं sperms में या फिर 23 chromosomes जाते हैं ovum में.
लेट अस सी हाउ. ये देखिए, मैंने आपके लिए एक स्कीमेटिक वे में बना के रखा हुआ है. ह्यूमन के बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज डिप्लॉइड. 46 chromosomes. Can I write down as in 23 pairs? 46 chromosomes को मैं 23 pairs में लिख सकती हूँ. Yes. 23 pairs यानी कि 23 chromosomes दो सेट में प्रेजेंट है. Please listen to this point. 23 chromosomes two sets में present है. So I will call it as diploid. So what is the meaning of diploid? What is the meaning of diploid? Two sets of chromosomes are present in the cell. How many? Two sets of chromosomes. All right. Male में भी और फीमेल में भी. चलो ये क्लियर हुआ. Now both male and female, they produce individual gametes which are called as sex cells. Sex cells, they are haploid in nature because they receive only single set of chromosomes. See, they receive only single set of chromosomes, that is 23 and 23. Now जब sperm and egg fuse होते हैं, when the fusion takes place, they produce zygote which is called as fertilized egg. And उसी zygote में 46 number दोबारा से restore हो रहा है. Guys, 46 number is been restored back. Now due to this restoring of the 46 number, baby is been produced. मतलब यानी कि हमारे ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर कितना है? ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर is 46. Exactly. Human का chromosomal number is 2n is equal to 46. Guys, अलग अलग animals के अलग अलग chromosomal numbers होते हैं. Dogs का chromosomal number is 78. Apes का chromosomal number is 48. 46. Monkey का chromosomal number is 48. Right? Elephant का उससे ज्यादा होता है. तो मतलब हर एक का chromosomal number जो है वो अलग अलग है बच्चा लोग. हमारा chromosomal number 46 है. तो अगर 46 है, जब तक 46 क्रोमोसोम्स जाइगोट में नहीं आएगा, डू यू थिंक कि ह्यूमन स्पीशीज प्रोड्यूस होगा या ह्यूमन प्रोजेनी प्रोड्यूस हो पाएगा? नो, बिकॉज ह्यूमंस के जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज ऑल बीन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 46 क्रोमोसोम्स, नॉट ड्यू टू हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इसलिए स्पर्म और ओवम, स्पर्म फ्रॉम द फादर एंड ओवम फ्रॉम द मदर, दे व्हेन बोथ ऑफ देम आर फ्यूजिंग 23 and 23, when they are fused, 46 नंबर रिस्टोर होता है. एंड उस रिस्टोरिंग के वजह से एक नया प्रोजेनी या एक नया जनरेशन तैयार होता है विद ह्यूमन फीचर्स. डिड यू गेट दैट? और इसीलिए ह्यूमन बॉडी जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोसिस. सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर मियोसिस. राइट? तो इसी मियोसिस से स्पर्म और एग्स प्रोड्यूस होते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्कीमेटिक? बिकॉज ये स्कीमेटिक आपको मियोसिस समझाने में बहुत हेल्प करेगा. राइट डाउन हो गया? लिख के एवरीवन, यू नॉट राइटिंग इट डाउन साइमल्टेनियसली विथ मी, यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन. यस मैम. आप ऐसे कैसे भूल सकते हो? आपको लिखना है मेरे साथ. आई विल नॉट गिव यू दिस स्पेशल टाइम फॉर दैट. चलो ये लिख लो फटाफट. जैसे लिख के हो जाए बताना, जल्दी जल्दी करना प्लीज. अब आगे का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है. और याद है ना, आपको एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है. आई होप यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन बैक ऑफ योर माइंड. व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स? अभी देखो यहाँ पे भी ये प्रोसेस आपको क्लियरली बता रहा है दैट वी आर रिसीविंग 23 chromosomes from our father and 23 chromosomes from our mother. So ideally we should be so much similar to them, but why are we different from them? इसी का आंसर आपको ढूंढना है. याद है ना आपको? पता है कि नहीं पता है? हेलो हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जवाब तो दो कि भूल गए क्वेश्चन. चलो, shall we move further? Yes. Yes, पक्का? ओके. मैंने कहा था आपको कि क्रोमोसोम्स इज हैविंग 2 क्रोमैटिड्स, मतलब एक क्रोमैटिड दूसरे का डुप्लीकेट कॉपी है. करेक्ट? ये डुप्लीकेट कॉपी बना कैसे? मन में क्वेश्चन नहीं आया जब मैंने आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया था? दैट ऑन वन सेंट्रोमियर
there are two chromatids which are attached, and both these chromatids are called as sister chromatids. यानी कि एक क्रोमाटिड दूसरे क्रोमाटिड का एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी है जो सेम सेंट्रोमियर पे अटैच होता है. किसी के मन में सवाल नहीं आया कि दूसरा क्रोमाटिड आया कहां से, ये डुप्लीकेट कॉपी बना कहां से? आया था ये क्वेश्चन दिमाग में? Yes, ma'am. यस. तो इसका आंसर अब हमें मिलने वाला है सेल साइकिल के प्रोसेस में. सो आर यू गाइज रेडी टू स्टडी सेल साइकिल नाउ? चलो, लेट अस बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस. देखो, किसी भी सेल को ना डिवाइड करने से पहले, सुनो, किसी भी सेल को डिवाइड करने से पहले ना 3 टास्क कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है. फर्स्ट, सेल मस्ट ग्रो इन अ प्रॉपर साइज. देखो, बिना ग्रोथ के तो डिविजन हो नहीं पाएगा, राइट? छोटे छोटे इमेच्योर सेल्स में ग्रोथ तो नहीं हो पाएगा. दे हैव टू बिकम मेच्योर. फॉर मेच्योरिटी दे हैव टू ग्रो. दूसरा, जो भी मटेरियल्स चाहिए लाइक प्रोटीन्स, आरएनए, एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये सब कुछ सिंथेसाइज करना है उनको. और तीसरा, डीएनए को डुप्लीकेट करना है. यस, दे हैव टू डुप्लीकेट द डीएनए बिफोर स्प्लिटिंग अप इनटू 2 डॉटर सेल्स. देखो, यानी कि 3 टास्क कंप्लीट करना है. डिड यू सी दैट? These are the 3 tasks that the cell has to complete before the cell divides. आप सुन रहे हो? अब जब ये तीनों टास्क एक प्रॉपर सीरीज में होता है ना, जब ये तीनों टास्क एक प्रॉपर सीरीज में होता है, उसे हम कहते हैं सेल साइकिल. जब ये तीनों टास्क एक प्रॉपर सीरीज में होता है, उसे हम कहते हैं सेल साइकिल. सो व्हाट इज सेल साइकिल, माय डियर स्टूडेंट्स? सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. बच्चा लोग विच इवेंट्स? बच्चा लोग विच इवेंट्स? ग्रोथ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए, डीएनए डुप्लीकेशन. बराबर ना? ये तीन इवेंट्स है ना. तो जब ये सारे इवेंट्स, ये तीनों इवेंट्स एक प्रॉपर सीरीज में होते हैं जहां पे डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है एंड सेल डिवीजन कर रहा है टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, देन दैट एंटायर सीक्वेंस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. सो व्हाट इज सेल साइकिल? Cell has to perform events in a series where the cell is duplicating its DNA and then dividing to produce 2 daughter cells is called as cell cycle. So what are the events that the cell is carrying out? मैं बताती हूँ. Cell is carrying out growth. Growth के बाद DNA को duplicate करता है. DNA को duplicate करने के बाद प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसाइज करता है. ओके, एंड उसके बाद डिवीजन करता है, या उसके बाद डिवीजन करता है. तो ये हो जाता है पूरा सीक्वेंस कि पहले वो ग्रो होगा, फिर वो डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, फिर थोड़ा बहुत प्रोटीन्स और आरएनए सिंथेसाइज करेगा एंड फिर इमीडिएटली डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाएगा. तो ये हो जाता है आपका पूरा सेल साइकिल. नाउ यू कैन सी मैंने इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया है, यानी कि सेल साइकिल के कितने फेजेस हैं? 4 फेजेस हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज G1, S, G2 एंड M. G1 में ग्रोथ होता है, S यानी कि सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस और डुप्लीकेशन होता है. G2 में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और M में वो डिवीजन करते हैं. सो लेट अस सी दिस ऑल प्रोसेस इन अ डिटेल. समझ में आ गया? आगे क्या होने वाला है समझ में आ गया? ओके. नाउ वी डिवाइड सेल साइकिल into 2 major phase. सुनो, हम लोग पहले इसको 2 मेजर फेज में डिवाइड करते हैं. ओके, वन इज नॉन डिवाइडिंग फेज, इंटरफेज, and another one is dividing phase, M phase, which is also called as simply mitosis. Okay, it is also called as simply mitosis. अब इसको नॉन डिवाइडिंग क्यों बोलेंगे बच्चा लोग? इसको नॉन डिवाइडिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे ना सेल डिवाइड नहीं कर रहा है. सेल इज नॉट डिवाइडिंग. आप सुन रहे हो? सेल इज नॉट डिवाइडिंग. नो, यहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, but metabolically active. But it is highly active. Metabolically active यानी कि बाकी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगा, बट सेल डिवाइड नहीं करेगा. आर यू गेटिंग इट? डिवीजन करने के लिए उसके पास एक अलग फेज है, दैट इज कॉल्ड एम फेज. यस और नो? Yes. Okay. Let us see the first one, interphase. But before that, check out the diagram. This is what cell cycle looks. ये होता है डायग्राम. ये है उसके 4 फेजेस. देखो, मैंने यहाँ पे 4 फेजेस ऑलरेडी बता दिए. G1, can you see that? Yes. Yes.
G1, S, G2 and M, right? Yes, okay. So let us assume सेल ने डिवाइड करके न्यूली डॉटर सेल्स बनाए. एक थोड़ा सा assumption लाओ ना दिमाग में कि सेल ने डिवाइड किया है, किसी भी सेल ने डिवाइड किया और न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स बनाए. अब ये जो डॉटर सेल्स है ये काफी छोटू है. So they have to gain maturity if they want to further divide. तो अब हम लोग सेल साइकिल ना इन नए सेल से स्टार्ट कर रहे हैं. ये जो नया सेल्स बना है ना, दो डॉटर सेल्स, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. So let us imagine this new cells want to carry out division further. अब इनका साइज तो काफी छोटा है, तो इतने छोटे साइज में तो वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे. So now these cells will enter into interphase. ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों जो नए डॉटर सेल्स है ना छोटे छोटे, अब ये दोनों डॉटर सेल्स पहले G1 के अंदर एंटर करेंगे, राइट? सो दे आर एंटरिंग इनटू इंटरफेस. सी नाउ दे आर एंटरिंग इनटू इंटरफेस. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द इंटरफेस? सेल इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डिविजन. ये दोनों के दोनों नए सेल्स जो है वो नेक्स्ट डिविजन की तैयारी करेंगे. वैसे तो कहने के लिए इट इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज बिकॉज द सेल इज रेस्टिंग फ्रॉम द डिविजन. All of you, are you listening? Yes. वैसे तो इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं बिकॉज सेल इज रेस्टिंग फ्रॉम द डिविजन बट इट इज एक्टिव, वेरी एक्टिव, हाईली एक्टिव. यानी कि G1, S और G2 में सेल डिवाइड नहीं कर रहा है बट बहुत ज्यादा एक्टिव है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज. बच्चा लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज बिकॉज सेल यहाँ पे तैयारी कर रहा है फॉर द नेक्स्ट डिविजन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेल यहाँ पे नेक्स्ट डिविजन की तैयारी कर रहा है and so it is called as preparatory phase. Now this interphase is divided into three phases: G1 first growth phase, S synthesis phase and G2 second growth phase. डन? क्लियर? Yes. आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, ma'am. Yes. बताती हूँ. दिस वॉज एन इनिशियल मदर सेल. इमेजिन करते किसी सेल ने डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाए, बरोबर है? अब ये दोनों डॉटर सेल्स का साइज देखो. चलो ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है, यहां से स्टार्ट करते हैं. ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है, बरोबर है? इनका साइज देखो. डू यू थिंक कि अब ये आगे डिवाइड कर सकते हैं ऐसे स्टेज में? खाली लॉजिक लगाओ, अपना खाली लॉजिक लगाओ. will it be possible for a cell to immediately divide without growth, without synthesizing proteins? It is not possible. So अब क्या होगा? अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है, सुनो सुनो, ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स पहले ग्रोथ करेंगे, दैट इज G1, बरोबर है? अब G1 में क्या करेंगे? वो ग्रो होगा, उनका ग्रोथ होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म डेवलप होगा, सारे ऑर्गेनल्स डेवलप होंगे, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सारे ऑर्गेनल्स अच्छे खासे डेवलप होके एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट विल गेट डबल बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए. मैक्सिमम साइज इंक्रीज होगा, शेप डेवलप होगा. मतलब दिस सेल्स आर गोइंग टू ग्रो प्रॉपरली, अच्छे खासे प्रॉपर ग्रो हो जाएंगे, जस्ट लाइक मदर सेल. मतलब अब ये दोनों सेल्स मैच्योर हो गए. ओके, दे हैव ग्रोन, फुल्ली ग्रोन सेल्स है ये. ओके, या दीज आर द फुल्ली ग्रोन सेल्स. अब ये सेल्स, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या करना है. सुन रहे हो? इट इज ऑल डिपेंड अपॉन देम कि आगे क्या करना है. दैट मीन्स if these cells want to further divide, then they will enter into S phase. Option number A. अगर ये सेल्स को आगे डिवाइड करना है तो वो S phase में जाएंगे, लेकिन अगर इन सेल्स को आगे डिवाइड नहीं करना है
तो वो G1 से बाहर निकल जाएंगे एंड वो G0 में जाएंगे, जहां पे दे विल टर्न इनटू परमानेंट सेल. आर यू लिसनिंग? एंड सेल साइकिल विल बी कंप्लीटली स्टॉप्ड. सेल साइकिल विल बी स्टॉप्ड, यानी कि दे विल लूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन. ये पॉइंट समझ में आया? ये हो गया ऑप्शन नंबर 2. मतलब सेल के पास दो ऑप्शन है गाइस, सेल के पास बकायदा दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन, इफ द सेल वांट्स टू कंटिन्यू फर्दर डिवीजन, तो वो एस फेज में जाएगा. लेकिन अगर सेल को डिवाइड करना ही नहीं है, सेल जस्ट वांट टू ग्रो एंड टर्न इनटू परमानेंट सेल, देन इट विल एंटर इनटू G0, जहां पे वो परमानेंट हो जाएगा. ओके, वेयर इट विल बिकम अ परमानेंट सेल because the cell cycle will be stopped, the ability of division will be lost, growth भी नहीं होगा, division भी नहीं होगा, it will carry out only function. ये समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे you can take heart cells, brain cells, nerve cells, etc. ये सारे सेल्स एक बार जब हमारे बॉडी में बन जाते हैं ना बच्चा लोग, दीज आर नीदर रिप्लेस्ड नॉर दे आर बिन रिपेयर्ड, यानी कि इनका कोई डिवीजन होता ही नहीं है और ना ही इनको कोई रिप्लेस कर सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इनको हम कहते हैं परमानेंट सेल्स. दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन. ओके, और दूसरा ऑप्शन ये है कि सेल को डिवाइड करना है. सो व्हेन द सेल वांट्स टू डिवाइड, इट विल एंटर इनटू एस फेज. अब एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है. डीएनए यहाँ पे डबल हो जा रहा है. इमेजिन करते हैं, इफ द सेल इज हैविंग 20 डीएनए, तो एस फेज के बाद सेल के पास कितना हो जाएगा? 40. वेरी गुड. द सेल विल हैव 40 and 40. वेरी गुड, अंडरस्टूड. अब एस फेज के बाद सेल कहा जाएगा? नेक्स्ट फेज में, दैट इज G2 फेज. एंड G2 फेज के बाद इट विल एंटर इनटू M फेज, जहां पे वो डिवाइड करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, हेलो, Yes, है ना? अब M फेज में दोनों सेल्स जिनके पास 40 है, M फेज में यहां ऊपर दिखा रही हूं. हेलो, M फेज का नीचे का मैं यहाँ पे दिखा रही हूं. It will divide to produce 2 daughter cells, each with 20 and 20. तो आइडियली मुझे यहाँ पे 40 नहीं लिखना है, वरना आप बोलोगे मैम ने हाफ कर दिया. मैं यहाँ पे लिखूंगी 20 + 20. समझो, मैं यहाँ पे 20 + 20 लिख रही हूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ये देखो, हमने स्टार्ट कहां से किया? 2 डॉटर सेल से, न्यूली फॉर्म सेल से, और अभी हमें मिला कितना? 4 सेल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर ये 4 सेल्स को आगे डिवाइड करना है, तो ये कौन से फेज में जाएंगे? X. नहीं, ये 4 सेल्स को डिवाइड करना है, दे हैव टेकन द डिसीजन ऑफ डिवीजन, तो पहले ये G1. कौन से फेज में जाएंगे? G1 में. और G1 के बाद S. S फेज में. S फेज के बाद G2. G2 फेज के बाद M फेज. और M फेज में जाने के बाद कितना प्रोड्यूस करेंगे? 8 डॉटर सेल्स. 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, 16 का 32 हो जाएगा, 32 का 64 हो जाएगा, एंड सो ऑन. अब समझा? तो मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होते ही रहता है. इट्स लाइक अ साइक्लिक प्रोसेस. भले मैंने यहाँ पे साइकिल के फॉर्म में नहीं दिखाया, मैंने ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में दिखाया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड every time the cells which are produced, they have to compulsory enter into G1 as G2 and then divide, then G1 as G2 and then divide, then G1 as G2 and then divide. So it's like a cyclic process, and that's why it is called a cell cycle. Is that clear? Yes. अगर ये स्कीमेटिक किसी ने ले लिया है तो उसको सेल साइकिल बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. डन? वेदांत, तू क्या कर रहा है घर के अंदर? कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी यहां उठ के जा रहा है. कर क्या रहा है?
बस पढ़ाई पढ़ रहा मैं, मोबाइल पे ज्वाइन किया है, तो बुआ तो साफ तू सफाई उठ कर के रही है तो कहाँ मैं उठ भाग रहा हूँ। घूम रहा है घर के अंदर? अरे मेरी बुआ साफ सफाई कर रही है तो मैं उठ रहा हूँ बेसिस। अच्छा, बोलो। एवरीवन इज क्लियर विथ ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया? अब मैं ये रब कर रही हूँ, और आपको मैं बता रही हूँ इंटरफेस। चलो लेट अस सी द फर्स्ट फेज, G1 फेज। फिर से एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। What is happening in the G1 phase, guys? RNA and proteins are synthesized. Okay. Cell grows into maximum size, जहां पे उसका साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, and mitochondria and chloroplast divides because they have their own DNA. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद ही डबल हो जाते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए। तो ये तीन चीजें होती है G1 फेज में, करेक्ट? अब ये तीनों चीजें कंप्लीट करने के बाद, ये तीनों टास्क कंप्लीट करने के बाद, सेल विल हैव टू ऑप्शन. Either the cell will withdraw from the cell cycle and enter into G0, or it will start preparing for the next division, by entering into S phase. दो ऑप्शन है, या तो G0 में चला जाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो. दिस इज ऑप्शन नंबर 1, wherein it is coming out of the G1, मतलब G1 कंप्लीट करने के बाद G0 में आ जाता है, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है एंड परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है. सो द सेल विल टर्न इनटू permanent cell. And second option is that it wants to divide further, so it is going into S phase. We want to study कि वो S phase, मतलब we want to study the second option. So let us see. उसके बाद सेल जो है वो सिंथेसिस फेज में एंटर करता है, wherein more DNA is synthesized. Yes, see, I am going to highlight these points. G1 में RNA and proteins are synthesized, volume of cytoplasm increases, mitochondria and chloroplast gets double. सिंथेसिस फेज में मोर डीएनए सिंथेसाइज, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, डीएनए डबल हो जा रहा है पूरा का पूरा. एंड सेकेंड ग्रोथ फेज में, जो कि शॉर्टेस्ट ग्रोथ फेज है, आरएनए एंड प्रोटीन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन, हेलो, RNA and proteins which are required for division are synthesized, and now the cell is ready to undergo M phase, that is division phase. अब जैसे ही वो सेल डिवीजन फेज में अंदर एंटर करता है, न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. नाउ दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स अगेन दे विल एंटर इनटू एस इंटरफेस, अगेन दे विल डिवाइड, अगेन दे विल एंटर इनटू इंटरफेस, अगेन दे विल डिवाइड, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते ही रहता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. अंडरस्टूड? की पॉइंट्स याद किया आपने? G1 में क्या हो रहा है, वापस से रिपीट करो. RNA and proteins are synthesized, volume of cytoplasm increases, mitochondria and chloroplast doubles. बरोबर है? डन है ना? सिंथेसिस में क्या हो रहा है, more DNA synthesized, ब्रैकेट में DNA gets doubled. G2 फेज में क्या हो रहा है, RNA and proteins required for the division are synthesized, और M फेज में क्या हो रहा है, डिविजन हो रहा है, दैट इज माइटोसिस. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. क्वेश्चन, टेक डाउन द क्वेश्चन. मैं जो भी क्वेश्चन दूं क्लासरूम में, आपको कंप्लीट करके आज के आज ही सबमिट करना पड़ेगा. ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम of cell cycle for 3 marks. टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है सेल साइकिल का, एज इट इज आपको ड्रॉ करना है. यस, इवन जो बॉक्स में लिखा है वो भी लिखना है. इट इज फॉर 3 marks. सो ऑब्वियसली यू नीड टू राइट डाउन, हर एक फेज का इंपॉर्टेंस लिखना पड़ेगा आपको, मतलब हर एक फेज में क्या हो रहा है कीवर्ड्स में वो डालना है. जैसे आपके डायग्राम में कीवर्ड्स डाले वैसे ही आपको भी लिखना है. ओके, सेम टू सेम डायग्राम सब लोग ड्रॉ करके सबमिट करेंगे. नोट डाउन द असाइनमेंट सो दैट यू कैन पुट डाउन दिस इन द गूगल क्लासरूम. आई एम ऑल्सो गोइंग टू, मतलब मैं तुरंत इसके बाद असाइन कर लूंगी असाइनमेंट, ताकि आप लोग उस पर सबमिट कर सको. ओके, लेट अस सी एस फेज में डीएनए डबल कैसे होता है. ये देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, मोर डीएनए सिंथेसाइज एंड द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट. कैसे होता है ये, लेट अस सी दैट. सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए ड्यूरिंग एस फेज, ईच डीएनए मॉलिक्यूल
will split up, and each DNA molecule will duplicate into 2, so that there is equal distribution into 2 daughter cells during mitosis. यानी कि हर एक डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट होकर 2 मॉलिक्यूल बनाएगा ताकि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल डीएनए जा सके. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, दैट इज ब्लू कलर का डीएनए विच इज कॉल्ड पैरेंटल डीएनए. देखो वो एक एंड में ओपन हो रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखो यहाँ पे वो ओपन हो रहा है, एंड वेयर इट इज ओपनिंग the strands are becoming free from each other. ब्लू कलर के strands जो है वो आपस में separate हो रहे हैं. अब जैसे ही वो separate हो रहे, the new strand is constructed. Can you see this? The new strand is constructed complementary to the old strand. मतलब each old strand के complementary नया strand बना है. अच्छा, what is the meaning of complementary, guys? What is the meaning of complementary? Exactly उसके बेस पेयर के जैसा नया स्ट्रैंड बना है ना. अभी देखो ओल्ड स्ट्रैंड पे यहाँ पे देखो TGCT है, तो नए स्ट्रैंड पे हमने क्या ऐड किया, G के सामने C ऐड किया, राइट, C के सामने G ऐड किया, T के सामने A. तो मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाओगे तो नया स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट होते जाएगा. डिड यू सी दैट? तो इस तरह से रेप्लिकेशन होता है. मतलब अगर आप ये डीएनए मॉलिक्यूल देखो और आप ये वाला डीएनए मॉलिक्यूल देखो, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है. इनफैक्ट दे आर एग्जैक्टली सेम. सो both these DNA molecules are going to separate in the daughter cell. Understood? अब जब 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बना है, अरे यार रेप्लिकेशन बाबा, जेरोक्स कॉपी बन रहा है डीएनए का. सिंपल इतना समझो ना, जेरोक्स कॉपी मतलब यूं समझ लो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर कोई जेरोक्स मशीन है जिसके थ्रू वो डीएनए का जेरोक्स कॉपी बना रहा है, 2 कॉपी बना रहा है, और अब ये दोनों कॉपीज को वो दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली, राइट. तो अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो 46 का डुप्लीकेशन होगा, एंड फिर 46 दोनों डॉटर सेल में चला जाएगा, खत्म. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. अब समझ में आया? हेलो, अब समझ में आया? क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमैटिड किधर से आया, ये दूसरा क्रोमैटिड किधर से आया, अब पता चला कहां से आया. डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है. Each DNA molecule is forming chromatid. ये देखो, are you looking to the screen? Each DNA molecule is forming chromatid. See, यहाँ पे नीचे 2 DNA molecule बना है. So this is forming 1 chromatid, and ये जो दूसरा वाला है, this is forming another chromatid. See, that means each chromosome is having duplicated chromatids, which is made up of duplicated DNA. और अभी इसी का ही सेपरेशन होगा ड्यूरिंग माइटोसिस. If one chromosome is having 2 chromatids after S phase, 46 chromosomes के पास कितना chromatid होगा? 92. Very good, fantastic. 92 chromatids after S phase. समझ में आया? समझ में आया? And Yes. these 92 chromatids are arranged in this form. यानी कि हर एक क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमैटिड्स एक ही सेंट्रोमियर पे अटैच्ड है, एंड अब इनका सेपरेशन होगा ड्यूरिंग माइटोसिस. गाइस मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रही हूँ. एक्चुअली ये सारी चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड भी नहीं, बट फिर भी पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो. सो प्लीज पे अटेंशन. ये आदित्य मैम, ये जो डायग्राम इसमें है, इसमें 2 क्रोमैटिड्स है, 4 क्रोमैटिड्स? 2 क्रोमैटिड है. मैंने तो 2 ही बनाए हैं, 4 किधर बनाए हैं? ये देखो ना, ये 1 है और ये 2 है. ऊपर वाला नहीं, दैट इज 1 इंटायर. अरे भगवान, मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही नहीं समझा है. नहीं मैम, समझा. क्या समझा आदित्य? ऐसे होता है. इट्स अ 1 सिंगल क्रोमैटिड. ओके मैम, समझ गया.
अब ठीक है? हाँ मैम। ऐसे 4 अलग अलग नहीं है बाबा. सेंट्रोमियर खाली क्रोमैटिड को बीच में अटैचमेंट के लिए. इट्स अ वन सिंग, मतलब एक पूरा वो यूनिट गिना जाएगा क्रोमैटिड. हाँ मैम. हाँ, मतलब सेपरेशन कैसे होगा आदित्य? ऐसे होने वाला है अभी सेपरेशन. ये ब्लैक लाइन दिख रहा है ऐसा, मतलब ये पूरा जो क्रोमैटिड है ये वाला, ये इस तरफ जाएगा और ये पूरा क्रोमैटिड इस तरफ जाएगा, मतलब ऑपोजिट. दोनों क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे. हाँ, दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे. और जब दोनों क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, हमारे पास टोटल कितने क्रोमैटिड्स है? 92. तो 46 जाएगा एक साइड में और 46 जाएगा दूसरे साइड में. हो गया ना दोनों डॉटर सेल्स विद इक्वल क्रोमोसोम. हाँ. Guys, did you understand this? Yes, ma'am. Yes, Cell ma'am. is having 46 chromosomes with 92 chromatids. जब ये सेल डिवाइड करेगा, हर एक सेल के अंदर कितना क्रोमैटिड्स आएगा? 46 chromatid और 23 chromosomes. 46 chromatid and 46 chromosomes. 46 chromosomes with 46 chromatids. Understood? No. क्यों? 46 क्रोमोसोम में तब 92 क्रोमैटिड है. क्योंकि वो एस फेज करके आया ना वेदांत. एस फेज में डुप्लीकेशन हुआ है, इसलिए 92 क्रोमैटिड्स है. तो अब ये डुप्लीकेट कॉपीज का सेपरेशन हो रहा है. मैं इसलिए बोल रही हूँ ये स्लाइड पे ध्यान दो, तो ही माइटोसिस समझेगा, वरना नहीं समझेगा. आई रिपीट वंस अगेन, एस फेज में क्रोमैटिड का डुप्लीकेशन हो रहा है. देखो ना, डीएनए का रेप्लिकेशन दिखाया तो सही डायग्राम. डीएनए का डबल कॉपी बन रहा है ना वेदांत, राइट? तो एक डीएनए मॉलिक्यूल एक क्रोमैटिड बना रहा है, दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल दूसरा क्रोमैटिड बना रहा है. तो ऐसे 92 क्रोमैटिड्स होंगे 46 क्रोमोसोम्स में. अब ये 92 का स्प्लिट अप होगा ना, तो 46 क्रोमैटिड जाएगा एक में, 46 क्रोमैटिड जाएगा दूसरे में. तो 46 क्रोमैटिड इज इक्विवेलेंट टू 46 क्रोमोसोम्स. गॉट इट? Yes. नहीं समझा है, बहुत से लोगों को नहीं समझा है. समझ गया मेरे को. Still are blank. How many of you have understood right now what I said? Sure. 100%. पक्का? हाँ. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ. अभी एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सुनो सुनो. अब यहाँ पे ये 46 सेल था, ये मदर सेल जो मैंने लिखा है 92 क्रोमैटिड के साथ, और ये दोनों डॉटर सेल्स हैं, बराबर है? अब ये जब दोनों डॉटर सेल्स एस फेज में जाएंगे तो इनका क्रोमैटिड्स कितना हो जाएगा? 92. 92. और जब वो डिवाइड करेंगे तो हर एक डॉटर सेल में कितना जाएगा? 46. तो मतलब इक्वली हो रहा है ना थ्रू आउट द डिविजन. क्रोमोसोम नंबर मेंटेन है ना, सिमिलर है ना. हाँ. बस बात खत्म. बस बात खत्म. बस मेरे को यही पूछना था और आपने समझ लिया है. बस मेरे लिए इतना काफी है. अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. Yes. पक्का? Yes. मैम, हाँ बच्चा. एस फेज से पहले क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? लाइक वो सिंगल लाइन होता है क्या? हाँ, सिंगल लाइन होता है. मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया था. किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? हाँ मैम, वो याद है मैम. ये देख, सिंगल. मैंने बोला था एस ध्यान फेज से देना, पहले का ना. ये ध्यान देना. दिस इज बिफोर एस फेज एंड दिस इज आफ्टर एस फेज. मतलब ओके. यही स्ट्रक्चर. अबे यहाँ पे एरो, अब मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ करके यहाँ पे लिख देती हूँ आफ्टर एस फेज. अब ठीक है? अब ठीक है आदित्य? हाँ मैम. हाँ ना, बस बस समझ गए तुम अभी. मैम हाँ बेटा. मैम एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड होते हैं ना? कौन बोल रहा है? एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? 2 क्रोमैटिड. हाँ, 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, लेकिन वो एस फेज के बाद होता है. यस मैम. हाँ, एस फेज के बाद होता है. एग्जैक्टली. गाइस, आप समझ रहे हो? हाँ मैम. चलो, गुड. Can the cell cycle go on endlessly? What is your answer? क्या सेल साइकिल कंटिन्यूसली चल सकता है? The answer is no, and sometimes the answer can be yes also. At some place it stops permanently,
at some place it stops temporarily. मतलब जहाँ पे temporarily stop हो रहा है and at the other still it is needed. मतलब जहाँ पे टेम्परली स्टॉप हो रहा है मतलब वो सेल्स दोबारा से कभी सेल साइकिल कर भी सकते हैं. एंड जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं दे कैरी आउट सेल साइकिल व्हेनेवर इट इज नीडेड बाय द बॉडी, राइट. सो ब्रेन, नाउ आई विल बी डिस्कसिंग सर्टेन एग्जांपल्स कि कौन से सेल सेल साइकिल कर सकते हैं और कौन से सेल सेल साइकिल नहीं कर सकते, यानी कि डिवीजन नहीं कर सकते. ब्रेन एंड लिवर सेल्स, they cannot divide further. Yes, they cannot divide further and are not even replaced once they are dead. Liver cells, liver cells can divide once every 1 or 2 years to replace the damage, but ये भी up to certain extent. Every time नहीं होता ये भी up to certain extent ही होगा, every time नहीं होगा. Surface skin cells, these are continuously lost and replaced by the underlying cells. तो यानी कि surface skin cells हमेशा लगातार सेल साइकिल करते ही रहते हैं. प्लांट में मेरिस्टेम सेल्स एट अ ग्रोइंग पॉइंट, दैट इज एट अ शूट टिप एंड रूट टिप, ओके, एट अ ग्रोइंग पॉइंट शूट एंड रूट टिप में जो प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम सेल्स, ये भी कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बड्स एंड फ्लावर्स एंड टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट. In our body there are special cells called germinal cells जो अलग तरीके का डिविजन करते हैं. Okay, these germinal cells are present in testes and ovaries in humans and ovary and anthers in plant, and they undergo a special type of division which is called meiosis, which is called, okay, यहाँ पे लिखा हुआ है, yes, these cells they undergo other type of division which is called meiosis to produce sex cells, that is gametes. यानी कि देखो हमारे बॉडी में स्पेशल टाइप का डिवीजन मियोसिस सिर्फ एक ही बार होता है गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए, हर बार नहीं होता है. हर बार हमारे बॉडी का रिपेयर रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है? माइटोसिस. सो दैट मींस ह्यूमन बॉडी में दो तरीके के डिविजन्स होते हैं एंड द टू टाइप्स ऑफ डिविजन्स आर माइटोसिस एंड मियोसिस. Mitosis is a division which leads in the production of diploid cell. And meiosis is a division which leads in the production of haploid cell. Mitosis, it produces diploid cell in our body for the growth and development. यानी कि हम mitosis reproduction के लिए use नहीं करते, हम mitosis use करते हैं या हमारा cells mitosis करता है for growth and development. But हमारे body cells meiosis करते हैं to produce gametes because हमारा sexual reproduction takes place through gametes. We are sexually reproducing organisms, तो हमें gametes compulsory produce करना ही करना है. Got it? Without gametes हम sexual reproduction नहीं कर सकते. तो gametes बनाने के लिए जो division की जरूरत है, that is meiosis, जिसमें half the number of chromosomes जाता है, and growth and development के लिए जो division की जरूरत है, that is mitosis. Is that clear? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Now कभी कभी बच्चा लोग सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड भी हो जाता है. Many a times it is seen in human body that uncontrolled cell cycle leads to a formation of tumors. These tumors may or may not be cancerous. ज्यादातर 95% tumors cancerous होते हैं और कैंसर होने का अब मैं आपको रीजन बता रही हूँ. The main reason is uncontrolled cell cycle. जब किसी भी परमानेंट सेल्स का सेल साइकिल स्टार्ट हो जाता है एंड वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होता है और अनकंट्रोलेबल सेल साइकिल होते ही रहता है, कंटिन्यूसली सेल साइकिल होते ही रहता है, इट प्रोड्यूस मास ऑफ एक्स्ट्रा सेल्स जो हमारा बॉडी एकोमोडेट नहीं कर पाता है. एंड इसलिए ये जो मास है सेल्स का, ये या तो ट्यूमर बन जाता है या फिर धीरे धीरे बॉडी के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है. एंड दैट इज हाउ इट लीड्स टू अ डेंजरस डिजीज व्हिच इज कॉल्ड कैंसर. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We will be starting with mitosis. Mitosis is called equal division. I don't have to tell you why. Just now we saw कि chromatids का equal separation हो रहा है, right? Equal distribution हो रहा है. Why? Because one parent cell divides to produce two identical daughter cells with the same number of chromosomes. With the
सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मतलब अगर मदर सेल में 46 है तो दोनों डॉटर सेल्स में भी 46 और 46 ही रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वल डिविजन। Mitosis takes place in two steps, karyokinesis and cytokinesis. Karyo का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस इन 4 steps, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए यू कैन जस्ट रिमेंबर द कोड दैट इज PMAT. ओके, PMAT, प्रो, मेटा, एना एंड टीलो। अब इसमें क्या हो रहा है, प्योरली क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है। जैसे ही क्रोमोसोम्स का सेपरेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि क्रोमैटिड्स का सेपरेशन कंप्लीट हो जाता है टीलोफेज में, सेल विल इमीडिएटली डू साइटोकाइनेसिस। तो देखने में जाओ तो ये पांचों फेज एक साथ होते हैं, मतलब एक के बाद एक सक्सेसिवली हो जाते हैं। प्रो, मेटा, एना, टीलो, साइटो। प्रो, मेटा, एना, टीलो, साइटो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. All right. Any doubt? यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी स्लाइड जो आपको रिपीट करना है या रिवाइज करना है या फिर से एक और बार देखना है, बताओ which slide you want to see? Sure? Structure of chromosome वाला ये वाला वेदांत? नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा? इसके बाद तो हमने जीन्स का किया। जीन्स का तो मैंने पहले ही बता दिया था, व्हाट आर जीन्स। हाँ ठीक। और डेफिनेशन भी मार्क करा था उसमें। हाँ, डेफिनेशन भी मार्क कराया था, एग्जैक्टली। आज के टॉपिक का बताओ कुछ ऐसा, मतलब सेल साइकिल का कोई पार्ट, फॉर्मेशन। एक बार इंटरफेस बताना वापस। एक बार इंटरफेस बता दो, ये वाला। यस। तीनों फेस समझ में आ गया ना, G1, S और G2? हाँ, ओके। इंटरफेस बच्चा, निष्का, इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज, G1, S एंड G2, जहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है लेकिन सेल नेक्स्ट डिवीजन की तैयारी कर रहा है, और इसलिए हम इंटरफेस को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज बिकॉज सेल यहाँ पे डिविजन नहीं कर रहा है, बट सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी कि सेल बाकी सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स एंड आरएनए, एटीपी मॉलिक्यूल्स टू बी सिंथेसाइज्ड, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज करना, साइज इंक्रीज करना, शेप इंक्रीज करना, डीएनए सिंथेसिस करना, ये बाकी सारी चीजें वो करेगा, लेकिन डिवीजन नहीं करेगा इंटरफेस के वक्त, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट फेज है, दैट इज एम फेज। तो आइडियली देखने में जाओ तो आपके पूरे सेल साइकिल के 4 फेजेस हैं, G1, S एंड G2 एंड देन M, राइट? G1, S एंड G2 को हमने एक कैटेगरी में डाला है जिसको हमने कहा है इंटरफेस। इंटर का मतलब होता है 2 सक्सेसिव डिवीजन के बीच का फेज, 2 सक्सेसिव डिवीजन के बीच का फेज। मतलब फर्स्ट डिवीजन हुआ, जो न्यूली सेल्स बने वो इंटरफेज में जाएंगे, ग्रोथ करेंगे, डीएनए का डुप्लीकेशन करेंगे, आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, एंड फिर वो सेकंड डिवीजन करेंगे। तो बेसिकली 2 डिवीजन के बीच का जो वो आराम वाला फेज है ना, रेस्टिंग वाला फेज, जहां पे सेल थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है और अपने आप को तैयार कर रहा है फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। इज दैट क्लियर? है ना? अब जिसमें वो ग्रोथ करेगा वो हो जाएगा G1, जिसमें वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो हो जाएगा S, एंड जिसमें वो आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस फॉर which is required for the RNA and proteins which are required for the division, जब वो सिंथेसाइज करेगा तब उसको कहते हैं G2। अब G2 को शॉर्टेस्ट फेज क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि सेल को पता है कि डीएनए डबल हो चुका है और डीएनए डबल होने के बाद वो G2 में आया, तो वो G2 में आके टाइम पास नहीं करेगा,
it will immediately carry out M phase. It will not waste the time at all because it is in a very crucial step. उसके पास DNA double हो चुका है, तो अब वो यहाँ पर ज्यादा देर तक time waste नहीं करेगा. It will immediately go into M phase and will start the division. समझ रहे हो? Yes, ma'am. Okay. बोलो. Any doubt? Everyone? No, ma'am. Heat, Bhumika, Nisarg, Shreyasi, Bhavya, Asta, Darsh. No, ma'am. No doubt. पक्का सबको क्लियर? बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में माइटोसिस स्टार्ट होने वाला है. कॉन्सेप्ट क्लियर रख के बैठो. नेक्स्ट लेक्चर में माइटोसिस करने वाले हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. तो प्लीज 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 नाउ यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस करने वाले हैं. ऑलराइट देन.